Now it's the time for expert session. So I would like to invite our first key speaker, Mr. Indrajit Bhattacharya. Mr. Bhattacharya is a museologist and epigraphist. At the same time, he professes on information technology, having an inherent flair towards the creativity. He has studied Brahmi, Pali, and Sharda scripts. Four has a scholarly address. I invite Mr. Bhattacharya. Thank you, Suresh Chand Jagirji. So, giving salutation to Ma Saraswati, and I begin this session. It's a great honor for me that I'm getting this opportunity to speak on the prestigious stage of BHU, and my deep respect to all the respected members and the peoples present here to attend this webinar, to listen to all of us. My mode of instruction will be English as well as Hindi. Mr. Suresh and Jangir has given me 30 minutes of time to speak, but I will try to wind up within that time period so as to provide opportunity to the youngsters to come up and speak and share their new ideas. Continuing to Professor Hiralal Prajapati ji's ideas and thoughts about the development and concept of painting and development of calligraphy, I start my session with a small presentation, and this presentation will contain certain points which I will try to elaborate and try to understand, try to explain it in Hindi basically. So my topic is development of calligraphy in Rajasthan from epigraphical point of view. Basically, I'm not a calligraphist, I'm a museologist. So I will try to cover and correlate the development of epigraphy and its handing over style to calligraphic mode in terms of writing. So we'll take a brief journey about the development of communication from Stone Age to the current time period. So in coming to introducing the topic, invention of communication by mankind. So it was basically for the history of mankind, the invention of communication was the major breakthrough, and it developed in a proper sequential manner where the communication started with posture and voice. Posture, we all know that for hearing impairment peoples, we use hand postures. We call it mudra in Hindi. तो विभिन्न मुद्राओं और ध्वनि के द्वारा सबसे पहले कम्युनिकेशन करने की कोशिश की गई पाषाणकालीन समय में. Then the human learned the engravings on stone. Many of the proof of such engravings have been found in caves. Since the art of writing was not posture and voice के थ्रू सबसे पहले आदि मानव ने कम्युनिकेशन करना स्टार्ट किया. उसके बाद एनग्रेविंग्स पे आए. चूंकि उस टाइम इंक नहीं था, कोई लेखन की सामग्री नहीं थी, तो पत्थरों पे एनग्रेविंग्स मतलब खुदाई के तौर पे लिखित चिन्ह बना के कम्युनिकेशन किया जाने लगा. और इसका आप फिगर 1 पे क्लिक करके देख सकते हैं कि
इसमें आप देख सकते हैं बेसिकली ये एक रेंडियर के बोन के ऊपर दो रेंडियर्स को इनग्रेव करके रखा बनाया गया है। आइस एज आर्ट है और ये ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। जी हाँ, तो एनग्रेविंग्स के बाद जो डेवलपमेंट हुआ वो ड्राइंग एंड पेंटिंग का था। स्टोन्स वॉल्स पे, केव्स के स्लैब्स के ऊपर पेंटिंग्स बनाए जाने लगे। ये पेंटिंग्स कलर्स के द्वारा बनाए जाते थे। फिगर 2 में आप देख सकते हैं इस चीज को। ये भीमबेटका की फोटोग्राफ है, इंडिया की ही ली गई है फोटो यहाँ पे। हम इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करने जा रहे हैं आगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्मली शिकारियों के फोटोग्राफ्स बनाए जाते थे, शिकार करते हुए फोटोग्राफ्स बनाए जाते थे, और जो कलर यूज किया जाता था उस टाइम वनस्पतियों से लिया गया और मिनरल से लिया गया कलर यूज किया जाता था। तो ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन माध्यम था जो मैनकाइंड ने यूज किया, ह्यूमंस ने यूज किया अपने भाव, अपने भावनाएं दर्शाने के लिए या एक्सप्रेशंस के लिए। ड्राइंग एंड पेंटिंग के बाद धीरे धीरे इन्हीं पेंटिंग्स में जो फिगर्स बनाए गए इनको लोगोस के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाने लगा, और जिसे हम कहते हैं लोगोग्राफी। लोगोग्राफी मतलब होता है कि जैसे एक बैल का फोटोग्राफ है उसको हमने इस तरह से इंडिकेट किया, आप लेफ्ट वाले कॉलम में देख सकते हैं, और इन चिन्हों को कुछ फोनेटिक नाम दिए गए। फोनेटिक नाम मतलब ध्वनि नाम दिए गए। जैसे इसको बुल्स हेड को एल्प कहा गया, ऑक्स हेड को एल्प कहा गया, और इस एल्प से ही ए लेटर का उद्भव उन्होंने किया। इस तरह से एक चिन्ह, सेकंड जो आप रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें हाउस को दर्शाया जा रहा है, हाउस का एक इंडिकेशन है। इसको बेट कहा गया, बेट से बी लेटर को इस तरह से इन्होंने डिराइव किया। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। और नेक्स्ट आपके देख सकते हैं थ्रो स्टिक है, फिश है, मैन कॉलिंग है, और इसके बाद एक मेज है। तो ये चिन्ह और इनके फोनेटिक साउंड्स साथ के साथ डेवलप हुए। ओके, देन आफ्टर फ्रॉम लोगोस slowly there was a development of scripts, and then finally the development of language and grammar. Now the thing is कि कौन सा पहले हुआ इसके बारे में विवाद है, हमें उस विवाद में नहीं जाना है। ये भी कहा गया है कि लैंग्वेज, भाषा की उत्पत्ति बगैर स्क्रिप्ट के भी हुई है, और हमें ये भी देखने को मिलता है कि स्क्रिप्ट्स डेवलप हुए जो साइंटिफिकली लोगों से डिराइव थे, और इन स्क्रिप्ट्स के बेसिस पे लैंग्वेज एंड ग्रामर डेवलप हुए। भारत के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि एक स्क्रिप्ट से कई लैंग्वेजेस डेवलप हुए जो हमें आगे देखने को मिलेगा। एंड कल्चरली रिच होने की वजह से इंडिया में ग्रामर के ऊपर शुरू से ही काफ़ी जोर दिया गया था, स्ट्रेस दिया गया था। एंड वी कैन सी पाणिनि के लिखित डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, बौद्धिक एंड जैन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ग्रामर का विकास बहुत अर्ली स्टेजेस में शुरू हो गया था। अब नेक्स्ट जो पॉइंट पे आते हैं वो है एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस। एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस का बेसिक मीनिंग यहाँ पे ये है कि एक लैंग्वेज एक पर्टिकुलर स्तर पे लंबे समय तक टिका नहीं रहा, उसका धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हुआ नए स्क्रिप्ट्स में, नए स्क्रिप्ट्स उसके हिसाब से बने। उसके बाद नए लैंग्वेजेस आए। जैसे हम अगर ब्राह्मी को लेते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो ब्राह्मी के कई रूप बने, उसमें से कई लैंग्वेजेस निकल के आए। हमारे राजस्थान के संदर्भ में कहें तो देवनागरी का डेवलपमेंट, उसके बाद देवनागरी का डेवलपमेंट जो उत्तर भारत में प्रचलित हुआ, और देवनागरी से फिर राजस्थानी भाषाएं जैसे महाजनी, ये सब डेवलप हुए। इसी तरह से न्यू डायलेक्ट्स आए। डायलेक्ट्स को बोला जाता है खड़ी बोली, जो मतलब लोकल भाषाएं जो होती हैं उनको डायलेक्ट कहते हैं। तो डायलेक्ट्स का भी विकास हुआ। इन सारे इवोल्यूशन, लैंग्वेज, भाषा की इस
पूरे एवोल्यूशन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारे इस प्रेजेंटेशन या डिस्कशन के कॉन्टेक्स्ट के लिए जरूरी है वो ये है कि न्यू स्टाइल ऑफ राइटिंग्स हर स्टेज में डेवलप होती गई। न्यू स्टाइल ऑफ राइटिंग का मतलब ये नहीं कि हम सीधे कैलीग्राफी पे कूद रहे हैं या जंप कर रहे हैं। न्यू स्टाइल ऑफ राइटिंग का मतलब ये हुआ कि सुविधा अनुसार, रीजन अनुसार, टाइम अनुसार लेटर्स का जो बनावट है, शेप, साइज, उसमें चेंज आने स्टार्ट हो गए, उसमें बदलाव आने स्टार्ट हो गए। ओके, प्लीज कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ कमिंग टू difference, just we have to understand the difference between epigraphy and calligraphy. एपिग्राफिकल स्टडीज जो होती हैं वो बेसिकली लैंग्वेजेस को लेके होती हैं, इंस्क्रिप्शंस को लेके होती हैं, राइटिंग्स को लेके होती हैं, और इसमें एक एक अक्षर की बनावट को ग्राफिकली स्टडी किया जाता है, उसकी मीनिंग्स की क्लैरिटी की जाती है, उसका ओरिजिन ढूंढा जाता है, उसका इवोल्यूशन ढूंढा जाता है, इसके साथ साथ उसके डेटिंग्स का पता लगाया जाता है। इसकी कोशिश की जाती है कि कितने तरह से एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की जा सकती है, और इनका क्या सांस्कृतिक महत्व रहा या सांस्कृतिक विकास हुआ, उस संदर्भ में भी इनकी स्टडीज की जाती है। ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट द राइटिंग एंड राइटर्स। नाउ इसमें ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि लिखावट की शैली के बेसिस पे उस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन या टाइम पीरियड का अंदाजा लगाया जाता है, और राइटर्स का जो लिखने का तरीका है वो भी स्टडी किया जाता है। वो राइटिंग का तरीका किस तरह से बदल गया टाइम के साथ और क्यों बदला, इसकी भी स्टडी की जाती है एपिग्राफी के अंदर। सो मोटे तौर पे ये भी कहा जा सकता है एपिग्राफी को लेके कि एपिग्राफी बेसिकली डील्स विथ योर लैंग्वेज स्टडी, your inscription studies which are being inscribed on hard surfaces like stones, metals, etc. कैलीग्राफी जबकि इसका आर्टिस्टिक व्यू है, कैलीग्राफी में आर्ट सम्मिलित हो जाता है, एपिग्राफी के साथ राइटिंग के साथ आर्ट को यूज किया जाता है, अक्षरों को सुंदर बना के लिखा जाता है, में ज़्यादा खिंचाव लाया जाता है जिस तरह से वो दिखे। इसके अंदर प्रोडक्टिविटी लाई जाती है इस तरह से कि आप एक शब्द लिख रहे हैं या सेंटेंस लिख रहे हैं तो वो एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दे सके। So calligraphy is a visual art related to writing. It is the design and execution of lettering with a pen, ink, brush and other writing instrument. तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कैलीग्राफी के अंदर कि इसके अंदर पेन का इस्तेमाल और इंक का इस्तेमाल, ब्रश का इस्तेमाल, ये ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है, और इसी के थ्रू ये कैलीग्राफी डेवलप हुई है, आगे आई है। तो एक तरह से कह सकते हैं जब तक पेन, इंक, ब्रश नहीं आया तब तक हम कैलीग्राफी का उद्भव नहीं मान सकते हैं। प्लीज कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टोन एज कार्विंग में आपको एक पिक्चर दिखाने वाला था। बेसिकली ये एडाकल केव्स का है। जी हाँ, तो इसमें आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर कि कई तरह के आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे। इसमें ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को जुड़ा हुआ एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बना हुआ है बटरफ्लाई के शेप में। Then there are other triangular structure, then linear structures are there, diamond structures are also there. So ये एक सामने वाला लेयर दिख रहा है, पीछे के लेयर में भी आपको और इंस्क्रिप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ओके, इसमें अपने फिगर 2 ऑलरेडी देख चुके हैं, भीमबेटका का वो पिक्चर था, उसी को मैंने यहाँ रेफर किया था। स्टोन एज ड्राइंग, स्टोन एज ड्राइंग्स में आप इस तरह के पिक्चर देख सकते हैं। इसमें कई तरह से कैटेगराइजेशन किया गया है, शिकार खेलते हुए, गेम खेलते हुए, कई बार इस तरह से बैठे हुए या खड़े हुए, डिफरेंट पोस्चर्स में ह्यूमन फिगर्स बनाए हुए हैं। ओके, प्लीज कम बैक टू दैट स्लाइड। और ये स्टोन एज ड्राइंग एंड पेंटिंग्स भीमबेटका में पाए गए हैं, मध्य प्रदेश में जो है पडियंडल में पाए गए हैं। सो यू कैन सी कि इतने सारे जगह जो हम देख रहे हैं, सितावरी एंड
नेहानरपट्टी, ये सब तमिलनाडु की जगह है। देन गुड़ाहांडी एंड योगी माता ओडिशा में पाए गए हैं। ईरकुड़ा कर्नाटक में भी पाए गए हैं। तो भारत प्रदेश के अंदर in India, we can see lot many places with Stone Age drawings and paintings. The places are already quoted. Suresh ji, next slide पे चलते हैं. Okay. Now we come to the Indian scenario. Indian scenario में basically दो scripts की प्रधानता पाई जाती है earlier times में. We are talking about the ancient period. These are Brahmi and Kharoshthi. ब्राह्मी एंड खरोष्टी का जैसे प्रजापति, प्रोफेसर प्रजापति जी ने भी हमें बताया कि जेम्स प्रिंसेप जी ने इनको सबसे पहले डिस्कवर किया था, और ब्राह्मी का और खरोष्टी का जो डिस्कवरी का श्रेय जाता है वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है और उनकी टीम को जाता है। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ 4-5 जने की स्कॉलर्स की टीम थी, और इसका जो डिस्कवरी एंड फाइनलाइजेशन हुआ था वो 1930s में हुआ था। नाउ सबसे मजेदार बात ये है कि जो स्क्रिप्ट, जो लिपि बाद के समय की थी वो पहले डिस्कवर हुई, और सॉरी मैं एक चीज गलती कर गया, द टाइमिंग वाज रॉन्गली कोटेड बाय मी, इट इज 1830 नॉट 1930। 19th में बेसिकली 1905, 1901 टू 1905 में इंडस वैली इंडस स्क्रिप्ट की खोज हुई थी, लेकिन इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये अभी भी अनडिसिफर्ड है। इसका अभी तक डिसिफिकेशन, मतलब जो इसकी शैली, लिखावट की शैली का जो इंटरप्रिटेशन है वो अभी तक नहीं किया गया है। फोनेटिक साउंड्स का भी अभी तक पूरी तरह से इंटरप्रिटेशन नहीं किया गया है, अलग अलग मत हैं, तो इस पे हम कोई एक राय नहीं रख सकते हैं। ब्राह्मी एंड खरोष्टी के एपिग्राफिकल प्रूफ्स कॉलोनियल इंडिया में जगह जगह मिले, पाए गए। ब्रिटिश जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे जो एक्सकवेशन का काम देख रहे थे उस टाइम, उन्होंने बेसिकली इस काम को आगे बढ़ाया और कई तरह के जैसे अशोकन पिलर्स जो थे उनके जो रॉक एडिक्ट्स थे वो इसी टाइम में पाए गए। तो गिरनार इंस्क्रिप्शंस हुआ, यशोधर्मन इंस्क्रिप्शंस हुआ, ऐसे कई इंस्क्रिप्शंस हैं जिनके ज़रिए हमें ब्राह्मी के प्रूफ मिले। दोनों जो स्क्रिप्ट्स हैं इसमें ब्राह्मी का जो काल है उसको अधिक माना जाता है, और ये ज़्यादा फला फूला सेंट्रल एशिया तक पहुंचा, सेंट्रल एशिया से चाइना तक गया, चाइना से फिर जापान तक गया। इसकी शैली देश पर देश, टाइम टू टाइम बदलती चली गई। खरोष्टी का टाइम पीरियड 500 से 600 साल तक रहा, और ये ज़्यादातर अफगानिस्तान, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान, वेस्टर्न चाइना, जिंगजियांग वाला जो प्रांत है वहाँ पे बहुलता से बोला जाता रहा, मतलब लिखा जाता रहा, और इसमें जो लैंग्वेज ज़्यादातर डेवलप हुई थी खरोष्टी में वो गांधारी थी और प्राकृत थी। तो ये बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस था। ब्राह्मी लेफ्ट से राइट लिखा जाता था, खरोष्टी राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। इनके ओरिजिन के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक, मेन जो टॉपिक है, जो फोकस है वो डिविएट हो जाएगा। ओरिजिन के बारे में कई, मैं ये बता दूं आपको कि ओरिजिन के बारे में कई डिफरेंट मत हैं, अलग अलग मत हैं लोगों के, तो हमें उस विवाद में नहीं पड़ना है, उसमें नहीं जाना है। कई लोग इंडिजिनियस कहते हैं, कई लोग बाहर का कहते हैं, लेकिन ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स के अलावा जो पाए गए दूसरे स्क्रिप्ट्स थे वो 18 स्क्रिप्ट्स जैन प्राइमरी सोर्सेज में पाए गए, जैसे संव्यांग सूत्र, पन्नवना सूत्र और भगवती सूत्र में। लेकिन इसमें ये भी मैं आपको बता दूं कि ये 18 जो स्क्रिप्ट्स की लिस्टिंग जैन प्राइमरी सोर्सेज में पाई गई, उनमें से थोड़े ओवरलैप थे और थोड़े भिन्न थे एक दूसरे से। बुद्धिस्ट टेक्स्ट ललित विस्तर में 64 स्क्रिप्ट्स पाए गए हैं, और इन स्क्रिप्ट्स का कई ऑथर्स ने, विशेष तौर पर राजवली पांडे जी ने
और अनिर्बन दास जी ने क्लासिफिकेशन किया है कई फैक्टर्स के बेसिस पे, कई सूत्रों के बेसिस पे। और ये फैक्टर्स जो हैं वो है प्रांतीय स्क्रिप्ट हुए, लेखन की शैली के स्क्रिप्ट आधार पे वर्गीकरण हुआ। इसके अलावा आपके जनजातियों के जो जिन जनजातियों ने इनको ये स्क्रिप्ट यूज करते थे उनके आधार पे इसका वर्गीकरण हुआ। तो इस वर्गीकरण के कई आधार थे, कई फैक्टर्स थे। इन आधारों में से हम जिस आधार को हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में चूज कर रहे हैं, मतलब बात मेंशन करने के लिए, वो है स्टाइलिस्टिक स्क्रिप्ट, जिसे हिंदी में कहा जाता है शैली परक लिपि। ये शैली परक लिपि जो थी वो फर्दर कई अलग अलग लिपियों में डिवाइड हुई, और ये शैली परक लिपि बेसिकली बनावट के आधार पे इनका डिफरेंशिएशन हुआ था। तो इसमें से बेसिकली कुछ जो तरीके थे इसके, मैंने टाइप्स बताए नहीं है। ये शैली परक लिपि जो थी ये 5 सब कैटेगरीज में बांटी गई, और ये 5 सबस्क्रिप्ट से उत्क्षेप लिपि, निक्षेप लिपि, विक्षेप लिपि, प्रक्षेप लिपि और मध्य स्कर विस्तार लिपि। ना इसमें हुआ ये था कि इनका जो ऊर्ध्व जो लेटर्स का जो स्ट्रोक्स थे, इनमें से ऊर्ध्व जो उत्क्षेप लिपि थी उसमें ये ऊपर की तरफ थे, निक्षेप में ये स्ट्रोक्स नीचे की तरफ बनाए गए, विक्षेप में ये लेटर्स सारे डायरेक्शंस में समानांतर तौर पे बनाए गए, और प्रक्षेप लिपि में इनका आगे की तरफ थोड़ा सा विस्तार किया गया जिससे कि अक्षर थोड़े से साफ दिखने लगे, और मध्याक्षर विस्तार लिपि के अंदर इनका सौंदर्यीकरण किया गया इस प्रकार से कि हर लेटर का जो बीच वाला हिस्सा हुआ करता था उसको थोड़ा सा मोटा किया गया, सुंदर किया गया, इसको फैलाया गया। तो हम पहला ट्रेस जो पाते हैं सौंदर्यीकरण का वो इस जगह पाते हैं कि इस तरह के वर्गीकरण में पाते हैं जब इनकी लिखावट, इनकी लेटर्स के अक्षर के बनावट में चेंजेस आनी शुरू हुई। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड सुरेश जी। ब्राह्मी स्क्रिप्ट जैसा मैंने बताया अलग अलग दौर से गुजरा, नए नए टाइम पीरियड से पास हुआ, एंड the main time period which are in focus are Mauryan, Kushan and Gupta। हाँ, ये कह सकते हैं कि मौर्य, कुषाण, गुप्ता के अलावा शक समय के भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट समय मिलते हैं, पाए जाते हैं, और इन इवोल्यूशन को यहाँ मैंने दर्शाया है नीचे फिगर में, आप देख सकते हैं। जैसे एक अक्षर मैंने लिया है यहाँ देवनागरी स्क्रिप्ट का अ, अशोकन समय में यही इस तरह से बनाया जाता था जो हम त्र के फॉर्म में देखते हैं। कुषाण में इसकी शैली थोड़ी सी परिवर्तित हुई, और गुप्ता ब्राह्मी स्क्रिप्ट के समय में ये और परिवर्तित हुई। गुप्ता ब्राह्मी स्क्रिप्ट, गुप्ता काल के समय में गुप्त जो शासक थे उन्होंने स्क्रिप्ट लैंग्वेज पे काफ़ी, स्क्रिप्ट डेवलपमेंट में काफ़ी ध्यान दिया, और तब तक इंक और लेखनी का विकास हो चुका था, और भी विकास हो रहा था, इसलिए लिखावट अब स्टोन से पेपर पे आ गई, और पेपर में भी इसमें चेंजेस आने लग गए, ज़्यादा ये मोटे बनने लग गए, ज़्यादा प्रोमिनेंट बनने लग गए, इसमें मात्राएं थोड़ी सी लंबी होने लग गई। तो हम देख सकते हैं कि इवोल्यूशन में का जो रिजल्ट हुआ, द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन वाज चेंज इन द लेटर शेप, चेंज इन द लेटर साइज। तो गुप्त काल का जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो अशोकन काल के ब्राह्मी स्क्रिप्ट के कंपैरिजन में, मुकाबले में डिफरेंट था आकार में और साइज में।
तो इस तरह से क्या हुआ कि डिफरेंट डायनेस्टी के टाइमलाइन के हिसाब से हम देखें तो देयर इज कंटिन्यूअस इवोल्यूशन ऑफ द स्क्रिप्ट्स। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ये एवोल्यूशन केवल डायनेस्टी टाइम पीरियड तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक डायनेस्टी के अंदर भी हमें इसके बाइफर्केशंस या ट्राइफर्केशंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे गुप्त काल का जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो फर्दर दो और वैरायटीज या वेरिएशंस में देखे जा सकते हैं। एक है गुप्त लिपि, जिसको हम पूर्वी लिच्छवी लिपि भी कहते हैं, और ये 4th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। इसके अलावा कुटिल लिपि, जिसको उत्तरी लिच्छवी लिपि कहा जाता है, ये 6ठी शताब्दी में डेवलप हुआ था। तो इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो आप नीचे इसमें टेबल में देख सकते हैं कि देवनागरी अ को गुप्त लिपि में अलग तरीके से लिखा जाता था और कुटिल लिपि में इसको थोड़ा सा और घुमाव देके, कर्व देके बनाया जा सकता था। नाउ इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या हुआ, गुप्त स्क्रिप्ट में जो मात्राएं थी वो थोड़ी सी लंबाकार बनने लग गई और उसमें जो अक्षर थे उनके स्ट्रोक्स थोड़े से बोल्ड हो गए, थोड़े से मोटे हो गए, क्योंकि तब स्टाइलस भी आ गया, पेन और राइटिंग मीडियम भी बेटर हो गया। राइटिंग मीडियम जैसे भोजपत्र होते थे, तालपत्र होते थे, इनके ऊपर लिखे जाते थे। पेपर्स का अवेलेबिलिटी होना शुरू हो गया था, लेकिन इसके बावजूद, मतलब इसके अतिरिक्त भी जो इंडियन स्कॉलर्स थे वो ज़्यादातर भोजपत्र पे और ताड़पत्र पे ही लिखना पसंद करते थे, क्योंकि उसके ऊपर जो लिखावट की बनावट होती थी वो ज़्यादा अच्छी होती थी। डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ कैलीग्राफी, तो ये वो टाइम पीरियड था जहां हम कह सकते हैं कि कैलीग्राफी का शुरुआत हुई एंशिएंट टाइम के अंदर, एंशिएंट पीरियड के अंदर कैलीग्राफी की एक तरह से शुरुआत हुई, और इसे हम इंडिक कैलीग्राफी के नाम से भी जानते हैं। इंडिक कैलीग्राफी कहा जा सकता है इसको, जिसमें स्टाइलस, पेन, राइटिंग मीडियम का अच्छे से विकास हुआ और काफ़ी रिलीजियस टेक्स्ट की कॉपिंग शुरू हुई। रिलीजियस टेक्स्ट की कॉपीज, हैंड रिटन कॉपीज बनाने शुरू हुए। बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने इनको प्रोत्साहित किया, और जैन ट्रेडर्स ने विशेष तौर पे जैन मुनियों को सम्मान करते हुए उनके ऊपर मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे, उन्होंने लिखवाने का काम शुरू किया। इसके अलावा संस्कृत के कई रचनाएं ब्राह्मी स्क्रिप्ट के थ्रू कैलीग्राफिक मोड में लिखे गए थे। तो दिस ओवरऑल कम्स टू द रिलीजियस टेक्स्ट। बेसिकली शुरुआत कैलीग्राफी की रिलीजियस टेक्स्ट से हुई थी, अगर हम इंडिक कैलीग्राफी की बात करें। कमिंग टू द इंडियन सिनेरियो, मिडिवल पीरियड, अराइवल ऑफ इस्लामिक कैलीग्राफी। भारत में इस्लामिक कैलीग्राफी मुख्यतः दो माध्यमों से आए थे, ट्रेडर्स एंड इन्वेडर्स। इनफैक्ट जो हमारा आज का हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन है पीरियड्स का, उसमें ये कहा गया कि जो अर्ली मिडिवल पीरियड था उसमें जब ट्रेड स्टार्ट हुआ वेस्ट के साथ, उसमें इस्लामिक ट्रेडर्स का आगमन भारत में होना शुरू हुआ, और उनके साथ साथ इस्लामिक कैलीग्राफी धीरे धीरे भारत में आनी शुरू हुई। और न केवल आनी शुरू हुई बल्कि इनका इंडिक स्क्रिप्चर्स के साथ ब्लेंड होना भी शुरू हुआ, और इस ब्लेंड का नतीजा ये हुआ कि नए स्क्रिप्ट्स बने, जिसमें से हम ये कह सकते हैं कि जो सौंदर्यीकरण हुआ वो इस्लामिक कैलीग्राफी का रूप लेने लगा। दूसरा जो माध्यम है वो इन्वेडर्स है। इन्वेडर्स में आप कह सकते हैं जो टर्किश इन्वेडर्स थे, और उसके बाद मुगल्स आए, वो अपने साथ कैलीग्राफर्स लेके आए। बेसिकली हम इसके बारे में आगे बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में। डेवलपमेंट ऑफ कैलीग्राफी, ड्राइंग ऑफ पिक्चर्स वाज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। तो इस्लाम में कैलीग्राफी का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट बढ़ाव इसलिए मिला क्योंकि इस्लाम में पिक्चर्स बनाना
बनाने की मनाही है। आप किसी का पोर्ट्रेट नहीं बना सकते हैं, आप किसी की पिक्चर नहीं बना सकते हैं। सो इन्होंने बेसिकली क्या किया कि लिखने के माध्यम से उसी पिक्चर की नकल की इस तरह से कि वो एक उस पिक्चर की शक्ल दे सके। तो यू कैन से that the Islamic writing imitated the pictures, and thus they fulfilled their purpose of drawing. Means indirectly we can say they fulfilled their wish of drawing pictures through calligraphy. दूसरा जो डेवलपमेंट जिसने कैलीग्राफी को बढ़ावा दिया, इस्लामिक कैलीग्राफी को, वो था कॉपिंग ऑफ रिलीजियस बुक्स, कुरान एंड हदीस। उन्होंने अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए और इनकी जो रिलीजियस होली जो बुक्स थी उनको सहेजने के लिए, उनको और आगे प्रसार करने के लिए इनकी कॉपिंग की। और इन कॉपिंग में कैलीग्राफी का बहुत अच्छे से यूज़ हुआ। इनिशियली ये कॉपिंग जो होती थी वो अरेबिक स्क्रिप्ट के थ्रू होने लगी थी, लेकिन अरेबिक स्क्रिप्ट को जो कैलीग्राफर्स होते हैं, बेसिकली मैंने कई कैलीग्राफर्स का इनफॉर्मल इंटरव्यू लिया, तो मैंने यही पाया कि अरेबिक कैलीग्राफी वाज नॉट सो इम्प्रेसिव बिकॉज उसके अंदर जो आर्ट का फ्रैक्शन हुआ करता था वो कम था। तो कैलीग्राफी की, इस्लामिक कैलीग्राफी की सुंदरता का पूरा श्रेय पर्शियन इन्फ्लुएंस को जाता है, फारसी इन्फ्लुएंस को जाता है, जिसने कैलीग्राफी में मतलब काफ़ी नवीनता लेके आए, सुंदरता लेके आए, क्रिएटिविटी लेके आए। तो दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इस्लामिक कैलीग्राफी। इस्लामिक कैलीग्राफी दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल्स ने ज़्यादा इस पे जोर दिया। मुगल्स के टाइम में इसके ऊपर ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। इसका कारण हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। प्लीज़ सुरेश जी नेक्स्ट स्लाइड पे आएँ। ये पर्शियन कैलीग्राफी का एक एग्जाम्पल है, एक मॉस्क के अंदर ये लिखा गया है, और इसको नाखून वाली स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ऊपर की तरफ घुमाव होते हैं और इस तरह से एक शार्पनेस रहती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अरेबिक कैलीग्राफी। यू कैन सी सिंपल सीधी सादी हैंडराइटिंग में ये एक कंपोजिशन लिखा गया है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सुरेश जी नेक्स्ट स्लाइड पे आए। कैलीग्राफी इन राजस्थान। नाउ जैसा मैंने बताया कि मुगल सेकंड जो मुगल एम्परर थे हुमायूं, वो बहुत पढ़े लिखे थे और उन्होंने इस कैलीग्राफी के डेवलपमेंट को इंडिया में इनिशिएट किया था। किस प्रकार से इनिशिएट किया था कि उन्होंने पर्शियन कैलीग्राफर्स को ईरान से इनवाइट किया और अपने कोर्ट में लेकर आए और उनसे जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट थे उस टाइम के, उनका ट्रांसलेशन का काम शुरू किया। ये रिलीजियस टेक्स्ट केवल इस्लामिक नहीं थे, बल्कि नॉन इस्लामिक टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट भी थे। और ये जितने भी मुगल बादशाह आए उनके टाइम में ये ट्रांसलेशन का काम चलता रहा, जिसमें हम देख सकते हैं रामायण, महाभारत, गीत गोविंद और इन हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट का भी ट्रांसलेशन हुआ आगे चलकर। इसके अलावा बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, इनके भी ट्रांसलेशंस पर कैलीग्राफिक मोड में किए गए। हुमायूं के टाइम के बाद से औरंगजेब के टाइम तक आने तक कैलीग्राफी बेसिकली दिल्ली या कुछ लिमिटेड प्लेसेस में चलती रही। राजस्थान में इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ था इसका, लेकिन औरंगजेब के आने के बाद हम ये कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड वर्क स्टार्ट हुआ। और ऑर्गेनाइज्ड वर्क इस तरह से स्टार्ट हुआ कि औरंगजेब ने इसके बढ़ाव के लिए मुस्लिम कैलीग्राफर्स जगह जगह भेजे। ये मुस्लिम कैलीग्राफर राजस्थान में भी आए और विभिन्न जगहों पे सेटल हुए, और उनके सेटलमेंट के बेसिस पे कई सेंटर्स डेवलप हुए पूरे राजस्थान में। ये सेंटर्स
कैलीग्राफिक सेंटर्स कहलाए आगे चल के। इसमें से हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से सेंटर्स पहले हुआ करते थे और अभी कौन कौन से सेंटर्स हैं। तो अराइवल ऑफ मुस्लिम कैलीग्राफर्स and artisans from Sindh belt also contributed in the development of calligraphy in Rajasthan. They take their places in different courts of the states of Rajasthan. different रियासतों में इन्होंने जाकर राजाओं के दरबार में स्थान पाए और वहाँ पे इन्होंने कैलीग्राफी का बढ़ावा किया। इसके साथ साथ हिंदू कैलीग्राफर्स भी थे जिन्होंने इस काम में उनका हाथ बटाया, उन्होंने भी इस कला को सीखा और उन्होंने भी इस पे काम किया। Initially, the calligraphy was started on the building walls. Normally, mosque and दरगाह में देखने को मिलता है। आप जितने भी मॉस्क, स्पेशली जो वर्थ मेंशनिंग यहाँ पे है, नागौर में एक मॉस्क है, एक सूफी संत हुआ करते थे, तो उनकी जो दरगाह है, उनके दरवाजे पे इस कैलीग्राफी का आप मतलब देख सकते हैं इस कैलीग्राफी को। Then calligraphy started on paper and parchment. Initially, it started with the you can say feathers. Feathers जो होते थे बड़े पक्षियों के, जो प्राइमरी फेदर्स होते थे, उनको चुना जाता था। प्राइमरी फेदर्स मतलब जो सिरे से थोड़े से मोटे हों और जिसके अंदर शाई ठहर सकती हो, मतलब इंक कैन बी रिटेन्ड फॉर सम टाइम। तो इस तरह के पंख सिलेक्ट किए जाते थे और धीरे धीरे जब 19th सेंचुरी में मेटेलिक निब्स आने स्टार्ट हुए तो फिर ये क्विल, जिसे पंख कहा जाता था, पंख वाला जो वो निब होता, उसको चेंज करके फिर वो निब वाले कैलीग्राफी पे आ गए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सुरेश जी। तो ये सेंटर्स थे कैलीग्राफी के राजस्थान में, अलवर, अजमेर, नागौर एंड टोंक। इसमें से टोंक अभी भी कैलीग्राफी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ज़्यादातर उन रियासतों में इसका बढ़ावा मिला जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और हम देख सकते हैं अलवर, अजमेर, नागौर और अजमेर में मैंने आपको बता ही दिया कि 2 दरगाहें हैं। मुस्लिम पॉपुलेशन भी उस हिसाब से ज़्यादा है और कैलीग्राफी के आर्टिजन्स भी यहाँ पे खूब पाए जाते थे, अभी भी पाए जाते हैं। सो इट डेवलप्ड एज अ सेंटर। टोंक की कैलीग्राफी के डेवलपमेंट का पूरा श्रेय उनके नवाब को जाता है, नवाब आमिर अली, एंड जिन्होंने इस कला का बढ़ावा दिया। उन्होंने न केवल बढ़ावा दिया बल्कि उन्होंने कलेक्शन किए काफ़ी कैलीग्राफिक डॉक्यूमेंट्स के। उन्हें जितनी भी किताबें मिलती थी उनकी कॉपी कराते थे वो अपने पर्सनल कलेक्शन के लिए, और टोंक के नवाब ने ये सारा कलेक्शन वहाँ के कुतुब खाने में रखवाया, अभी भी ये है। एंड सो इनिशिएशन ऑफ नवाब ऑफ टोंक टू प्रमोट द कैलीग्राफी, और आज के टाइम में टोंक एक मेजर कैलीग्राफिक सेंटर के रूप में विकसित हुआ है, और वहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरेबिक पर्शियन इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो इस कला को बढ़ावा दे रही है। इसकी ट्रेनिंग दी जाती है पर्शियन एंड अरेबिक एंड उर्दू फॉर्म में, किस तरह से कैलीग्राफी किया जाता है, पेपर पे कैलीग्राफी सिखाया जाता है। इसके अलावा जो नई चीज़ सामने आई है खुल के, वो है डिजिटल कैलीग्राफी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरेबिक पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट में डिजिटल कैलीग्राफी में आजकल ज़्यादा काम होने लग गया है। इसमें मेरे को जो इन्फॉर्मेशन टॉक से इंस्टीट्यूट से मिला है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने फॉन्ट्स विकसित किए हैं और इन फॉन्ट्स को कंपोज करके नए नए लेख जो होते हैं, कलात्मक लेख, उनको लिखा जाता है।
लेकिन इस डिजिटल कैलीग्राफी के साथ ये कंसर्न्स भी रेज किए जा सकते हैं, उठाए जा सकते हैं, ये चिंताएं भी सामान्य है कि जो हाथ से लिखने वाली कैलीग्राफी है वो डिजिटल कैलीग्राफी के आने के बाद से कम हो गई है। और अगर डिजिटल कैलीग्राफी इसी तरह से पॉपुलर होती चली गई, बढ़ती रही, तो हाथ वाली कैलीग्राफी में जिसमें कि एक्चुअल आर्ट हुआ करता था वो धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। नाउ द थिंग इज कि इसमें ये भी है कि आप हाथ से जब कैलीग्राफी करते हैं तो आपके अंदर इनोवेशंस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इज़ वेरी इनोवेटिव कंपेयर टू कंप्यूटर ब्रेन। कंप्यूटर ब्रेन इज़ अ प्रोग्राम ब्रेन। कंप्यूटर ब्रेन जो होता है वो कृत्रिम ब्रेन होता है, इसके अंदर जो आप फीड करते हो फॉन्ट्स, उन्हीं के ऊपर या उन्हीं को लेके आप काम कर सकते हैं। जबकि ये मतलब ये कलात्मक लेख जो कैलीग्राफी कहलाती है, जो आप हाथ से करते हो, उसके अंदर हमेशा हर स्टेप में, हर स्टेज में इनोवेशंस होने की गुंजाइश होती रहती है। तो इस कंसर्न के साथ ही मैं इस प्रेजेंटेशन को विराम देता हूं। सुरेश जी, ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। धन्यवाद आप सभी को मेरा प्रेजेंटेशन सुनने के लिए, देखने के लिए। तो मैं इस प्रेजेंटेशन को यहीं समाप्त करता हूं और डॉक्टर वीरेंद्र बन्नू जी को आह्वान करता हूं। उनको, वो नामी कलाकार हैं राजस्थान के, उनको इनवाइट करता हूं कि वो आगे और इस चीज़ पे, कैलीग्राफी पे प्रकाश डालें। थैंक यू। Thanks, sir, for this informative session.